time we talked, I mean, Right. still it is not clear to me. Yeah, In the please. sense कि देखिए मैंने कहा कि you Hello. told me that I must visit there and release the pain and heal it, right? Yeah, Release. if you have the capacity and the power to go back and remember your past, or the strength to go back and remember your past, Yes. and make peace with it right Okay. now, then it is okay. If you can't do it right now, then maybe there's another time when you are stronger and powerful from within to take care of those things. So it depends upon person to person. But then we should increase our strength, we should increase our power to face those things in the past and learn from that. You know, there are instances that somebody did something, okay, that wrongfully did something, okay, and somehow I am unable to forgive him or her, whatever. Okay. Forgive that person. Okay. So I tried. I honestly tried, because I understand that if I cannot forgive that person, the only person who will be suffering is me. Exactly, you're going to suffer then. I understand that. But when I recall that event, and I'm unable to, justify that, or I mean, in any way, I think that they don't deserve forgiveness for that particular act. Okay. Right. So in that situation, I want to, get rid of it. Right. But it is very hard. Whenever I think of that situation, I get angry. In fact. Okay. So because please tell me. I mean, the situation was. I don't get angry. So easily. But situation was something like that I am unable to forgive the person. Okay. Okay. So first stage, if we look at, is the understanding that if I don't forgive or don't try to let it go, then I am the one who suffers by remembering it. That is the first step. Okay. Yes. Then for the second step, we have to go even further deeper and understand certain principles or certain laws which are working in this universe, in this world. If we go deeper into those laws which are working in this universe, then only we can answer them and come to terms with what has happened in the past. Okay. Are you ready to go into those deeper terms? I don't know. Maybe yes. Okay. Because there are certain laws which are working in this world, which are not seen by the eyes, not even felt by the skin. There are certain laws which are working beyond our five senses. What happened? That whenever there is something wrong, whenever something wrong has happened in my life, I just try to justify it. That I have done this, so this happened to me. It's okay. Let it go. Okay. But there are particular scenarios, one or two, that I could not, put any logic to that. Can't relate to it. Yes, but because I didn't do anything wrong knowingly, of course, to that person or whatever. I mean, you might have not even met that person in this whole lifetime. No. That is not the sin. Okay. The sin is the person is in my life from my childhood. Okay. But I used to trust whatever, everything. But and
knowingly or unknowingly, I don't think I have done any harm or any thing wrong to that person. How did it? But still, that particular, event, I am unable to. Otherwise, whenever things like this, छोटा मोटा अगर कुछ होता है तो ओके भाई कर दिया छोड़ो यार जाने दे इसको। उन्होंने किया मैंने किया हो गया बराबर ये सब कुछ ठीक है झगड़ा खत्म। राइट मतलब आई डोंट लाइक टू कैरी बर्डन। I don't like to prolong it also. Yes, and even I mean in a situation where I felt pain or I was hurt, if there is some little bit of fault from my side, I justified it. Justified it. Okay, भाई ये मैंने गलत किया तो ये हुआ छोड़ो। Right. This a few events it's very disturbing. When you can't find a logical answer to that, right? Yes, I can't logic. There is no logic. Right. So are we ready to understand one thing, that logic comes to us through our five senses? Because जो देखा, जो सुना, जो बोला, जो feel किया, वही माना, right? Yes. Without the five senses, can logic exist? No. Can even practicality of things such as mathematics, physics, chemistry, nothing will exist, right? Yeah. So when we look for answers in the five senses, there are certain things when it comes to the physical world it can be answered. जैसे कि mathematics हो गया, physics हो गया, ये action and इसका reaction हो गया, right? Any kind of thing. Now, one thing, and another thing I want to tell about that particular event, that I feel that the event was, वो उसने जो भी किया, intentionally to, hurt me or damage that particular day. And ये सब करने के लिए उसने intentionally किया, जो भी किया intentionally किया. That is the main issue. That I feel only. Okay. Right. That तो अब जो बता रहे थे बताइए आप। Yeah. So intentionally किया, लेकिन आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आपने कुछ किया है उनके साथ में। Your physical senses also have not recorded anything कि आपने कुछ उनके साथ में किया है जिस कारण से उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया, right? Yes. Exactly. तो बात वही आती है कि जब हम फाइव सेंसेस के अनुसार हम कुछ लॉजिक निकाल नहीं पाते हैं कि मेरे साथ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो हमें एक और सेंस के पास में जाना पड़ता है जिसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस, जिसको कहा जाता है छठी इंद्री. Then we have to take help of spirituality. Then we have to take help of laws which are beyond the physical senses or answers which are beyond the physical senses. So मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, are you ready to explore that, the sixth sense? Yes. Okay. If that helps me, then definitely ready. Surely. So there is something which the five senses cannot answer and only the sixth sense can answer. Now what is the sixth sense? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें. So there is a physical world which we see around us, and there is a non-physical world also which exists. Okay. Now the physical world is of five elements, and the non-physical world is of energy, or let's say soul, or atma, or ruhu, which also exists, which we have seen in many religious scripts also. We have heard many religious people talk about it. Even spirituality talks about the spirit, spirit's actuality. So spirituality जो इतना बड़ा word हम सुनते हैं आज, सुमिंदु, that is actually spirit की actuality क्या है? What is the actual truth about the spirit? And all of us want to know the truth, right? हमें सत्य पसंद आता है. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हम कभी-कभी, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हम कभी-कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन उनसे मिलकर के ऐसे लगता है कि जैसे कि इनको हम जानते हैं बहुत समय से,
जिसको कभी कहा जाता है डेजा वू हुआ, या कोई आप जगह पर गए, आपको लगता है कि हाँ ये जगह पे मैं पहले आ चुका हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे फील क्यों हुआ, एंड टाइम बिकेम स्टिल फॉर अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम, कुछ सेकंड ऐसे गायब हो गए मेरे लिए, लेकिन मेरे को लगा कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, या इस जगह पे आ चुका हूँ, या इस इंसान को मिल चुका हूँ मैं पहले। किसी किसी को होता है ये। अच्छा, आपको हुआ है? आई डोंट रिकॉल। ओके, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ओके, opposite happened a few times that राइट, वो मैंने एक वीडियो में एक्चुअली आई वाज वाचिंग वन वीडियो, यही बात बोल रही थी, मतलब आई फॉरगॉट हर नेम, सॉरी। तो opposite happened a few times that I met somebody and and they mentioned that कि आपसे मिले हुए कभी? नहीं, I mean एक नेगेटिव है, जैसे एक होता है कि भाई मिले हैं अच्छा लगा, हाँ राइट, एक होता है कि नेगेटिव देखते ही नापसंद टाइप का। एग्जैक्टली, इट कैन हैपन बोथ द वेज, डजंट मैटर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है जी। बोथ द थिंग्स हुआ है, नेगेटिव हुआ है ना। so we'll explore why is that happening in a negative way also, ठीक है? So what we are trying to find out over here is how does the sixth sense work over here. And another example is, which science is also proving right now, आपने कभी एक्सपीरियंस ऐसे किया होगा, अगर अपने रिलेशनशिप्स में देखा जाए, कि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने मदर के साथ में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो कभी न कभी जैसे बीमार होने के बाद में तो मदर का फोन आता था अचानक से, एंड वो बोलती थी कि बेटे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं बोला हाँ माँ ठीक ठाक है, थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो मम्मी बोलती थी मेरे को कुछ लग रहा था, ऐसी कुछ हो रहा होगा, इसलिए मेरा मन किया था इससे बात करने का। आई वांटेड टू कॉल यू बिकॉज आई फेल्ट समथिंग। नाउ शी इज सिटिंग 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम मी, शी इज इन वन सिटी एंड आई एम डाउन साउथ इन पुणे। नाउ हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, जबकि 5 सेंसेस देख नहीं सकती हैं, मेरी मदर की आंखें देख नहीं सकती हैं, मेरे मदर के कान सुन नहीं सकते कि मेरी तबीयत खराब है कि नहीं खराब है, मैं कुछ बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, राइट? सो हाउ कुड शी फील कि हाँ मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, तो मैं एक बार फोन कर लूं, पूछ लूं कि क्या हुआ, क्या है उसको, मेरे को ऐसे फीलिंग क्यों है ना कि उसको फोन करना पड़ेगा मेरे को। एक ये एक्सपीरियंस हुआ, अब हो सकता है आपके साथ हुआ हो ना हुआ हो। थर्ड एग्जाम्पल हुआ है ना आपके साथ में, बहुत बार, राइट? थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, आपने किसी के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में या किसी रिलेटिव के बारे में सोचा, कुछ समय तक सोचा आपने, यू थॉट अबाउट दैट पर्सन जस्ट फॉर लेट्स से 1 minute 2 minutes इन अ वेरी डीप मैनर, इमोशनली होकर के, एंड सडनली दैट पर्सन कॉल्स यू अप। यस, हैपेंड, राइट? यस। सो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हमारे सामने आज, आपने वो पहला वाला फर्स्ट एग्जाम्पल बोला, नेगेटिव भी हुआ है आपके साथ, किसी के साथ में पॉजिटिव होता है, डेजा वूज होते हैं कि आपको पहले कहीं मिले हैं या कुछ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया कि मदर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप में, मदर इतनी दूर होकर के भी हॉस्टल में पढ़ते हुए भी होता है, मतलब मेरे साथ हुआ है। आपके साथ हुआ है ना ये सेकंड वाला? दूसरे रिलेशनशिप भी, माँ तो मतलब अभी भी अगर थोड़ा सा तबीयत खराब होता है तो माँ का फोन आ जाता है ऑटोमेटिक। एग्जैक्टली, तू ठीक है ना, बस। तो ये तो माँ तो परमानेंट है, बाकी दूसरों के साथ भी हुआ है मेरे। यस, क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी होता है, अपने स्पाउस के साथ होता है जी। हाँ जी। तो जिसके साथ भी आपका रिलेशन बहुत क्लोज है, आप डीपली कनेक्टेड है ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस, उनके साथ में होता है। तो इन तीनों एग्जांपल्स में कोई फिजिकल सेंसेस इन्वॉल्व थी? नहीं, नॉट एट ऑल, राइट? वो इंफॉर्मेशन पाने के लिए कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था, है ना? इतने दूर दूर पे थे, सोचा फोन आ गया अचानक से, तो ये हो कैसे रहा है एग्जैक्टली? सो यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ करके अब हम घुसेंगे सिक्स्थ सेंस में, विच इज द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और द वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट और द सोल। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आत्मा ये कैसे कर पा रही है, या ये नॉन फिजिकल वर्ल्ड कैसे फंक्शन करता है। तो अगर हम सोचें आज कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को हटा दें, आज फिजिकल डिस्टेंस को हटा दें आज, तो अगर हम सोचें कि देखिए अमेरिका में आज ये हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इसका हमें कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम दार्जिलिंग में बैठे हैं या मालदा में बैठे हैं, कोलकाता में बैठे हैं। तो ये मान्यता गलत हो जाती है। क्यों? बिकॉज अगर कहीं पर भी कुछ आत्माओं के अंदर नेगेटिविटी या इम्प्योरिटी या उथल पुथल या एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेस होता है, तो उसकी वाइब्रेशन, जैसे एक मदर की वाइब्रेशन 1000 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है बच्चे तक, उसका पहचान हो जाती है मदर को,
उसी तरीके से सारी सोल्स जितनी भी वर्ल्ड की हैं, उनके अगर हम फिजिकल बॉडीज को भूल जाएं, एवरीबडी इज अ सोल राइट नाउ, 6 सेंस देखा जाए, so every soul is interconnected to each one of us in some way or the other, through thoughts बोलो आप, through karmas बोलो आप, through anything बोलो आप. We all interconnected at different levels. So इसी तरीके से क्या होता है कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपको? जी 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 बिल्कुल राइट. तो ऑन दिस बेसिस क्या होता है कि अब हम जानते हैं कि सोल इज इमॉर्टल बीइंग, वो कभी मरता नहीं है. Body is mortal because soul is something which is totally as per religious texts also, as per spirituality also, and as per our knowledge also, the soul is not made up of any 5 elements. It is immaterial. The body is made up of 5 elements. This foundation is very important to understand what we are trying to understand in the next steps. Are you there with me? Yes, yes, I am here. So अगर आत्मा नहीं मरती है तो कोई अगर डेथ होती किसी की तो वो आत्मा जाति कहाँ है, क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले. और इन्हीं चीजों को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि हमारे साथ में ऐसे क्यों होता है, कि व्हाई डिड दैट पर्सन डू दिस टू मी. सो व्हेन अ सोल लीव्स अ बॉडी, दैट मीन्स दैट एनर्जी विच इज सेंसिंग दैट 6 सेंस, जो कि 1000 किलोमीटर दूर होकर के भी फ्रेंड्स हो या मदर हो या फैमिली मेंबर्स हो, उनको फीलिंग आ जाती है इतने दूर बैठ के भी मेरे बच्चे को कुछ हुआ है. So that means this is not any of the 5 senses which is actually taking that information, sitting so far away. Right. It is the 6th sense, that means it is the soul which is an energy form which can attract energies of other forms. It can take information in the form of telepathy, even if you are thousands of kilometers away. It can even sense changes in the environment. कुछ लोगों को ये भी होता है कि पता नहीं क्या, ऐसे लग रहा है मेरे को बहुत तेज बारिश आने वाली है, या ऐसे लग रहा है मेरे को जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा कोई कैलामिटी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ आने वाला है. जैसे आपने देखा होगा इवन एनिमल्स को पहले पता लग जाता है इन चीजों के बारे में. जी. उनका 6th सेंस हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज हमारा टाइम ज्यादा जाता है पैसे कमाने में, घर कार को देखने में, खाना पकाने में, अपनी सेहत को देखने में, कपड़े पहनने में, लेकिन जो एनिमल सोल्स होती है उनको इतना टाइम नहीं लगता इन चीजों को सोचने के लिए. सो देयर 6th सेंस इज मोर एक्टिव देन आवर्स, बिकॉज दे डोंट हैव टू थिंक सो मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ. तो उनको जल्दी पता लग जाता है कि कुछ होने वाला है, सो सुनसान हो जाता है. अचानक से एनिमल्स चुपचाप हो जाते हैं बिकॉज अर्थक्वेक आने वाला है, कुछ आने वाला है. सो what I'm trying to say over here, what we're coming to over here is that there's an energy within this body of ours, which is known as the soul, which is always gathering information in the form of experiences and also in the form of expressing itself. Okay. So आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर अगर आत्मा है तो आज आप मेरे से बात कर पा रहे हो, मुंह से बोल पा रहे हो, आप आंखों से देख पा रहे हो, आप कानों से मेरी बातें सुन पा रहे हो, राइट? अगर वो आत्मा इस आपके शरीर से निकल जाए तो क्या मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगा उस तरफ से? नहीं. राइट. दिस इज द इटर्नल ट्रुथ विच वी हैव लर्न्ड फ्रॉम चाइल्डहुड और थ्रू रिलीजियस टेक्स्ट और व्हाटसएवर, राइट? कि आत्मा अगर निकल जाती है तो क्या होता है, बॉडी डेड हो जाती है. दैट मीन्स बॉडी इज नॉन फंक्शनल. सो नाउ 5 सेंसेस को अलग किया जाए और सोल को अगर देखा जाए तो दिस इज द आत्मा जिसका आत्मा के साथ में रिलेशनशिप है. दैट इज वाई वी जनरली हियर द वर्ड सोलमेट्स. आपने सुना होगा? जी बिल्कुल. आपने कभी बॉडी मेट सुना है? नहीं सुना. नहीं सुना ना? तो सोलमेट क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन करने वाली बात है ना जी, कि हम सोलमेट्स हैं या मैंने अपनी सोलमेट को ढूंढ लिया, पा लिया, जो भी है बोलते हैं ना. तो उसमें हम बॉडी मेट्स क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं. सो अगर हम सोलमेट्स बोलते हैं दैट मीन्स इट्स अ कनेक्शन बिटवीन 2 सोल्स. नो ऐसा क्यों होता है कि कुछ आत्माओं के साथ में हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं ऑन अ डीपर लेवल, एंड कुछ आत्माओं के साथ में हम कनेक्ट नहीं हो पाते, इवन इफ देयर आर क्लोज पेरेंट्स और रिलेटिव्स ऑल्सो. हम उनसे इतना क्लोज नहीं हो पाते जितना कि हम बाहर के लोगों के साथ में इतना क्लोज आते हैं. समटाइम्स इवन मच मोर देन आवर ओन रिलेटिव्स. हाँ होता है. होता है ना? एक्सपीरियंस किया ना?
तो इसमें 5 सेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो मेरा खून कौन सा मेरे अंदर दौड़ रहा है, मेरे पेरेंट्स का दौड़ रहा है या मेरे रिलेटिव्स का दौड़ रहा है या जीनियोलॉजी मेरी जो फैमिली ट्री का उसका दौड़ रहा है, तो मेरे को तो सबसे पहले तो किसके साथ क्लोज होना चाहिए, है ना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में क्लोज होना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं होता है आजकल, ज्यादातर देखा जाए तो, नॉट इन एवरी केस बट मेजोरिटी केसेस। सो दैट रिलेशनशिप विच वी से इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इवन आवर फैमिली रिलेटिव्स, we call it as soul to soul connection. It doesn't need to be a man and a woman as a soulmate. Are you there with me? Didn't get you. Man and? What we're trying to say over here is that जो closeness है, that closeness is not felt so much with our relatives sometimes. It is felt much more with the other person. Even though हमारा उनके साथ में physical DNA भी मैच नहीं करता है, बॉडीली 5 सेंसेस भी मैच नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उनके साथ में कुछ वाइब्रेशन एंड कुछ फ्रीक्वेंसी मैच करती है। हाँ। जो वाइब्रेशन एंड जो फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं वो है सोल। ओके ओके, नाउ ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज सोल, स्पिरिचुअलिटी कहती है सोल के अंदर ही माइंड है, इंटेलेक्ट है और एक और थर्ड पावर है विच इज नोन एज संस्कार और हैबिट। आपने सुना भी होगा कि अच्छे संस्कार की बहू है, अच्छे संस्कार लेके आई है, सुनते हैं ना हमारे इसमें संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, अच्छा संस्कारी लड़का है, संस्कारी लड़की है, सुनते थे पहले, आजकल नहीं सुनते हैं। आजकल क्या सुनते हैं? गोरी लड़की है, हैंडसम लड़का है, राइट? तो संस्कारी तो नहीं बोलते ना आजकल, वो बहुत कम हो गए वो ना। तो एक जमाना था जब बोला जाता था संस्कारी घर से आई है, मतलब कि हैबिट्स अच्छी हैं, तो लोगों का उस समय धन दौलत नहीं देखी जाती थी, खूबसूरती भारी नहीं देखी जाती थी, लेकिन क्या देखा जाता उनके हैबिट्स देखे जाते, जो हमारे पूर्वज या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा उस पर फोकस किया करते थे। सो ये ज्ञान लुप्त होने के कारण या ये ज्ञान खत्म होने के कारण हम बहुत ही फिजिकलिटी पे सारे आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉजिकली। आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक इन दिस, व्हाई इज इट हैपनिंग विद मी? बिकॉज हम बाहरी 5 इंद्रियों या 5 सेंसेस से हम आंसर्स ढूंढते हैं। अब बात आती है जब सोल के अंदर माइंड है, इंटेलेक्ट और संस्कार हैं, एंड अगर सोल मरती नहीं है तो जब वो एक सोल एक शरीर छोड़ती है और वो सोल ही एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है आपस में, इट इज गॉट नथिंग टू डू विद द फिजिकल डीएनए और रिलेशनशिप व्हेन वी फील क्लोजर टू समबडी। तो इज इट पॉसिबल दैट रिलेशनशिप जिसमें हम उस इंसान से कभी मिले नहीं हैं इस जन्म में, वो कहीं ऐसे भी हो सकता है कि वो पिछले जन्मों का भी हो सकता है, बिकॉज दैट सोल इज इमॉर्टल फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट। आई एम ऑल्सो सोल, आई एम ऑल्सो इमॉर्टल। आज जो मेरे सामने मेरे शरीर छोड़ रहे मेरे फैमिली में, जिसको हम ग्रैंड पेरेंट्स बोले हैं, पेरेंट्स बोले हैं, जो भी बोले हैं, फैमिली मेंबर्स बोले हैं, ब्रदर सिस्टर बोले हैं, वो भी एक आत्मा है, वो छोड़ के जा रहे हैं, राइट? दे कैन ऑल्सो टेक अ रीबर्थ, दैट मीन्स द सोल कैन एंटर अनदर मदर्स वूम्ब and enter into a body and again take rebirth. Possible or not possible? बिल्कुल possible. So अगर ये possible है तो मैं अगर आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हो, हम सब आत्माएं हैं, तो हमने कई जन्म हम इमॉर्टल हो गए। मॉर्टल तो सिर्फ बॉडी हो गया, बॉडी खत्म होता है, आत्मा तो मरती नहीं। बिकॉज कभी मन को मरते हुए सुना है? नहीं। इंटेलेक्ट को मरते हुए सुना है? संस्कार को मरते हुए बात किया नहीं मैंने, इंटेलेक्ट को मरते हैं लेकिन मन के मरने का तो बात वाली पैदा नहीं। हाँ, मन को हम उसको कहते हैं कि मन को मत मारो, मतलब कि कोई इच्छा हो तो उसको मत खत्म करो, लेकिन वो तो इच्छा की बात होगी ना। हाँ, लेकिन सोल या ऐसे इंटेलेक्ट को ऐसा तो नहीं होता है, होता नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली। तो अगर सोल के अंदर ही ये 3 पावर्स हैं, द सोल डज द थिंकिंग थ्रू द माइंड, soul does the decision making through the intellect, and soul has got the habits, जो इनको कहते हैं संस्कार। तो एक सोल के अंदर ये सब तीनों शक्तियां हैं, तो क्या इसी जन्म में लेके आई है कि पिछले जन्म के भी हो सकते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि माइंड इमॉर्टल है, इंटेलेक्ट इमॉर्टल है, संस्कार इमॉर्टल, बिकॉज दीज 3 आर पार्ट ऑफ द सोल इटसेल्फ। तीनों चीजें, तीनों एस्पेक्ट्स, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार आर नॉन फिजिकल एंटिटीज। दे आर नॉट मेड अप ऑफ
any of the 5 elements, ना पानी के बना हुआ है, मन को कभी सुना ही नहीं हमने पानी के बना हुआ मन, या बुद्धि पानी की बनी हुई हो, या मिट्टी की बनी हुई हो, या आग से पका करके बनाया हुआ हो, है ना? ऐसे तो कुछ नहीं है कि मन इससे बनता है. We have never heard that mind was created out of some 5 elements, या लोहे का बना हो या सोने का बना हो, right? So that means these are abstract. These have got nothing to do with the 5 elements or anything to do with the 5 senses. That means mind is also immortal, cannot be destroyed. Intelligence also cannot be quantified. No. And so it cannot be destroyed also. Something cannot be quantified means it cannot be destroyed. Same with sanskars are also unquantifiable. They are also not something which is measurable in a physical terms. संस्कार का तो कोई वेट नहीं होता, हाइट नहीं होता, है ना? जी बिल्कुल. सो ये भी तीनों जो शक्तियां हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, दीज आर नॉन फिजिकल एंटिटीज विच एक्चुअली बिलोंग टू द सोल. एंड द सोल हैज द पावर टू लीव वन बॉडी एंड टेक अनदर बॉडी. नाउ क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आज सपोज आपने, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपने सपोज आज 1 करोड़ रुपए किसी का कुछ करके, आपने या किसी ने भी कुछ गलत काम करके, कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज करके या भ्रष्टाचार करके आपने 1 करोड़ रुपए किसी का गायब कर दिया, गलत काम कर दिया आपने, या उसका कुछ नुकसान कर दिया. एंड लेट्स से टुमारो यू लीव योर बॉडी और दैट पर्सन लीव्स द बॉडी. उसने एनर्जी कैसी फैलाई उस दुनिया में? नेगेटिव. अब आप मेरे को खुद ही बताइए, लॉ के अनुसार तो गवर्नमेंट भी बोलती है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राइट? लेकिन वो अगले दिन क्या होगी? डेथ होगी उसकी. अब जब उसने, उस आत्मा ने जो कर्म किया उस शरीर में, बॉडी में रह करके, लेकिन उस आत्मा ने क्या किया? बॉडी को छोड़ दिया. तो अब ये जो डिसबैलेंस आया है नेचर में या वर्ल्ड में, ये बैलेंस कैसे होगा? कौन बैलेंस करेगा? उसी आत्मा को करना पड़ेगा जिसने शरीर छोड़ा है, फिर से पुनर्जन्म लेकर के, कि कोई थर्ड पार्टी को करना पड़ेगा वो डिसबैलेंस, जिसने कुछ करा ही नहीं गलत? लॉ की बात हो रही है. आत्मा कहता है. पढ़, हिसाब से तो उसकी आत्मा को करना पड़ेगा. लॉ तो वही कहता है ना जी. लेकिन अगर हम ये बोले कि नहीं, वो तो शरीर छोड़ दिया, मर गई, अब तो क्या करना है, अब तो आपका कुछ उसमें लेना देना नहीं है, अब कोई और करेगा, आप भुगतो इस चीज को, तो ये तो लॉ नहीं कहता ना, राइट? दिस इज नॉट राइचियसनेस. बिल्कुल नहीं. अगर लॉ बन जाए जिसमें कि मैं कुछ कर लूं, कल मैं बच जाऊं, अगर शरीर छोड़ के चले जाऊं, खत्म हो गया काम, तो आज तो हर कोई फ्री हो जाए इन चीजों से. कोई किसी को कभी कुछ मिले ना, लाइफ में, यूनिवर्स में भी कोई बैलेंस ही ना रहे इस हिसाब से, तो दुनिया में दुखी बढ़ता जाए. तो लॉ ये कहता है स्पिरिचुअलिटी का कि अगर हमने किसी के साथ में कुछ किया है बुरा, और हमने कल अगर शरीर भी छोड़ दिया या नहीं भी छोड़ा, लेकिन हमें किसी न किसी जन्म में हमें वापस आकर के उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको वो कर्ज लुटाने के लिए. ओके. तो कभी कभी आप देखते हो कि कुछ कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बचपन से लेके बड़े होते तक वो पेरेंट्स के ही खर्चे उठाते रह जाते हैं. Means they are taking care of the parents, and the parents are whiling away the money, or they are spending the money left, right and center, and the child is working hard, very hard to get the money. Sometimes ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स के घर में बच्चा ऐसा पैदा होता है जो इतना उसको बीमारियां होती हैं, लेकिन पेरेंट्स बहुत अमीर हैं, उनके पास में हो सकता है गलत तरीके का पैसा भी हो, लेकिन वो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा होता है? वो बच्चे की, है ना, बच्चे की उसमें जाता है, हॉस्पिटैलिटी में, सब कुछ हॉस्पिटल में जा रहा है, उसको देखभाल में जा रहा है उसकी, राइट? ऐसा भी देखा है हमने. तो ये कौन सा बैलेंस हो रहा है जो कि यूनिवर्स चाहता है? तो बात यही आती है, ये जो 6th सेंस का जो लॉ है वो ये कहता है कि एक एनर्जी है विच इज बियॉन्ड द फिजिकल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड. हम तो एक तराजू में रख देते हैं ना, इस साइड में वेट डाल देते हैं, इस साइड में सब्जी डाल देते हैं, बोलते हैं भैया बराबर का ही देना सब्जी हमें, यहाँ 500 ग्राम डाल देते हैं, यहाँ 500 ग्राम सब्जी डालना आप, है ना, वेइंग स्केल में, बैलेंस में, तराजू में, उसके हिसाब से हम खरीदते. तो वी वांट एवरीथिंग एज पर लॉ. तो एक लॉ है जो कि बियॉन्ड द फिजिकल भी है, एंड दैट लॉ इज द लॉ ऑफ द स्पिरिट्स, लॉ बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन स्पिरिट्स.
सिंपल एग्जांपल, अगर आपने किसी को आज गाली दी या बुरा बोला आपने, तो सबसे पहले तो दुख आपको होता है, बिकॉज आपने एक नेगेटिव एनर्जी भेजी है, राइट? जी जी। और वो जो नेगेटिव एनर्जी आपने भेजी, जब तक आप सॉरी ना बोलो तब तक आप क्या करोगे, उसको आप आंखों में देख नहीं पाओगे, राइट? यू कैन नॉट सी आई टू आई विद दैट पर्सन। होता है ना, ऑफिस में भी होता है, घर में भी होता है, यू डोंट सी, हस्बैंड वाइफ भी होता है, झगड़ते हैं, तो जिसको पता है मैंने गलती करी है, मेरे को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए था, तो वो आंखों में आंख नहीं मिला के देख पाता है, जब तक कि वो सॉरी ना बोल दे और वो एनर्जी को नलीफाई ना कर दे, या न्यूट्रलाइज ना कर दे, राइट? तो ये तो स्मॉल स्केल में हो गया ना, ये तो अभी गाली दी और अभी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, बिकॉज वो बैड फीलिंग, बैड वाइब्रेशंस ना रहे घर में, उसके लिए। इमेजिन यही चीज किसी और जन्म में करी हो लेकिन सॉरी ना बोलने पाए मिला हो तो, या अहंकार के कारण सॉरी बोला ही ना हो, या ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण, जेलिसी के कारण हमने उसको रेक्टिफाई ना करा हो, तो वो कब रेक्टिफाई करना पड़ेगा? वो तो बैलेंस रह जाएगा। That imbalance will be there, which will be carried over and which can never be forgotten. हम चाहे बॉडी चेंज कर ले अगले जन्म में जाकर के, फिजिकल फीचर्स चेंज कर ले हम अगले जन्म में जाकर के, लेकिन हमें उन आत्माओं के जिनके साथ में हमने अच्छा किया है, बुरा किया, उनके आसपास ही हमें जन्म लेना पड़ता है।